अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की तिजारत को हराम कर दिया है। और अब सुर्खियाँ। कुवूर में जगन ने विद्या दीवेना स्कीम के तहत तलबा के माओं के खातों में रकम की मुंतकिल। तकरीबन 10 लाख तलबा हो रहे हैं मुस्तफीद। हज कमेटी की क़यादत में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ मुनाकिद हुआ इजलास। हज उमूर में सहूलत बख्श इंतजामात में ताउन की दी हिदायत। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म से कराने की मुखालिफत। 19 अपोजिशन पार्टियों ने तकरीब का बॉयकॉट करने का किया ऐलान। मोदी की सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुलाकात। ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में दोनों मुल्कों के कौंसिल खानों के क़याम से किया गया इत्तेफाक। और अब तफसील। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कुवूर में जगन अन्ना विद्या दीवेना स्कीम के तहत तलबा के खातों में फ़ी रिम्बर्समेंट की रकम जमा की है। उन्होंने बटन दबाकर 9,95,000 तलबा की माओं के खातों में 703 करोड़ रुपये मुंतकिल किए। याद रहे कि अब तक विद्या देवीना और वस्ती देवीना के तहत जगन हुकूमत ने 14,912 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च किए हैं। साबिक़ हुकूमत के बकायाजात 1,778 करोड़ रुपये भी जगन हुकूमत ने जारी करके तलबा और सरपरस्तों को राहत पहुंचाई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ने 4 साल के दौरान तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं। उन्होंने कहा कि 9 रत्नों के तहत मुतारिफ की गई तालीमी स्कीमात से AP सरकारी तालीमी इदारों की नई सूरत गिरी की गई और अंग्रेजी मीडियम के जरिए तालीम का नज़्म करके मियारात को बुलंद किया गया है। जगन ने कहा कि तालीमी तलबा और आने वाली नस्लों के लिए असल तोहफा है। ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా కూడా నర్సరీ నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు విద్యా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులన్నీ కూడా ఈ 4 సంవత్సరాలలో మన రాష్ట్రంలో వేగంగా అడుగులు పడుతూ వచ్చాయి. ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి చూసుకున్నా కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడి మారింది. ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడులలో చదువులు మారుతా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ బడులన్నింటిలోనూ కూడా ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చింది. CBSE ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఈరోజు ప్రతి గవర్నమెంట్ బడిలోనూ కూడా వాళ్ళ సొత్తుగా మారింది. ఈరోజు పిల్లలు గవర్నమెంట్ బడులలో వెళ్తా ఉన్న పిల్లలకు ఈరోజు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఒక పేపర్ ఇంగ్లీషు, పక్కన పేపర్ తెలుగు. ఎవరికి సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా కూడా 2 భాషల్లోనూ కూడా బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్తో ఈరోజు మన పిల్లలు బడులల్లో కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకొస్తా ఉన్న గొప్ప మార్పులకు సంపూర్ణ పోషణం, రోజుకో మెనూతో గోరుముద్ద పథకాలు, వీటి ద్వారా అంగన్వాడీలు స్వరూపాలు మారుతా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుకుంటా ఉన్న ఆ పేద పిల్లలకు పౌష్టికాహారం ఇచ్చే విషయంలో గత ప్రభుత్వాలు కేవలం సంవత్సరానికి 400 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడానికి కూడా వెనకాడిన పరిస్థితిలో ఈరోజు మీ అన్న ప్రభుత్వం అక్షరాల ఒక్కొక్క పథకానికి దాదాపుగా 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वहीं मुख्तलिफ तालीमी स्कीमात से इस्तिफादा करने वाले तलबा ने भी इस मौके पर अपने तासुरात बयान किए। स्कूली और कॉलेज तलबा ने बताया कि उनके माशी हालात कमज़ोर हो जाने के सबब वो तालीम हासिल करने से कासिर थे, मगर हुकूमत की तालीमी स्कीमात ने उन्हें तालीम को जारी रखने का मौका फराहम किया। ఒక సాధారణ నాయకుల్లాగా మీరు మోసపూరిత హామీలు ఇవ్వలేదు సార్. ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూడా రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆర్థికంగా వెనకబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చిన ఏకైక నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది మీరే సార్. దీనికి మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్. మీరు గత 4 సంవత్సరాలుగా మీరు అవలంబించిన నవరత్నాల ద్వారా మా తండ్రి గారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా 13,500 రూపాయలు ఆయన లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్. మా అమ్మగారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా 12,000 రూపాయలు పొందుతున్నారు సార్. నేను వైఎస్ఆర్ జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా 63,000 రూపాయల పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పొందుతున్నాను సార్. అంతేకాకుండా హాస్టల్లో ఉంటే
నా తమ్ముళ్ళు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారో వారి ఖర్చులకి ఎక్కడి నుంచి మనీ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో 20,000 రూపాయలు నేను వసతి దీవెన ద్వారా పొందుతున్నాను సార్. మా తమ్ముడు అమ్మఒడి ద్వారా 15,000 రూపాయలు పొందుతున్నాడు సార్. సార్ ఇవన్నీ కాదు సార్, మీరు మాపై ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి రుణపడి రానున్న రోజుల్లో నవ్యాంధ్రను ప్రతిభాంధ్రగా మారుస్తామని సభాముఖంగా మా అందరి విద్యార్థుల తరపున మీకు హామీ ఇస్తున్నాను సార్. ఒక అవిటవాడన్న నా తల్లి ఒక చెవిటి మూగ అన్న అయినా సరే అమ్మకి నాన్నకు పెన్షన్ ఇస్తూ నేనున్నాను నేను విన్నాను అంటూ వచ్చి నా కుటుంబాన్ని ఆదరించవన్నా. వసతి దీవెన, విద్య దీవెన అంటే నా కాలేజ్ ఫీజు మొత్తం మీరే చెల్లించారన్నా. ఈరోజు మీ దయ వల్ల ఒక కార్పొరేట్ కాలేజీలో కొండవీటి డిగ్రీ కాలేజ్ గోకులపురంలో బీకామ్ కంప్యూటర్ చదువుతున్నానంటే దట్ ఈజ్ మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ యూ అన్నా. నేను చదువుకున్నప్పుడు బెంచెస్ కానీ సరైన ఫుడ్ కానీ మీ వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా మాకు చాలా ఇబ్బంది అయ్యేదన్నా. మీరు వచ్చి స్కూల్స్ రూపురేఖలు మార్చేశారు కదన్నా. विजयवाड़ा में हज कमेटी ने तमाम मुतालिका महकमे जात के साथ इजलास मुनाकिद करके हज इंतजामात को मौसर बनाने पर तबादिले ख्याल किया। इस इजलास में नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पहली बार विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से एपी के आज़मीन सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। आज़मीन को इजाफी हवाई सफ़र का खर्च 80,000 रुपये हुकूमत ने अदा किया है। उन्होंने आज़मीन की मदद करने पर वाहिजगन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इजलास में तमाम महकमे जात के सरबराहान और हज कमेटी के चेयरमैन के अलावा महकमे अखिलियती उमूर के सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद ने भी शिरकत की। మరి ఏదైతే ఈ పవిత్ర హజ్ యాత్రకు వెళ్ళే యాత్రికులపైన పడుతున్న అదనపు భారం ఏదైతే 80,000 రూపాయలు ఉందో మరి ఆ అదనపు భారాన్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకొని మరి ఆ అదనపు భారం ఏదైతే ఉండాదో 1813 మంది ఏదైతే యాత్రికులు ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించి 14,50,51 రూపాయలు మరి వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా జమ చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికీ నిజంగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగనటువంటి విధంగా మన రాష్ట్రంలోనే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకొని మరి ఇవాళ ఇంతమంది హాజీలకు సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. తద్వారా మరి అందరూ హాజీల తరఫు నుంచి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మనం ఏదైతే హైదరాబాద్ తరహాలో శంషాబాద్లో ఏ తరహాలో మన యాత్రికులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారో అదే తరహాలో మరి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించమని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది. మరి తద్వారా మరి ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ గారు కూడా స్పందిస్తూ ఖచ్చితంగా మేము చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక ఎక్స్రే మిషన్ని మన హజ్ క్యాంప్కే వాళ్ళు అక్కడే ఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి హజ్ యాత్రికులు మనకు 7వ తేదీ జూన్ నుంచి మనకు 19వ జూన్ వరకు మనకు హజ్ యాత్రకు బయలుదేరుతున్నాను గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి. దీనికి సంబంధించి ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులతోనూ మనకు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు, తర్వాత గుంటూరు జిల్లా అధికారులతో ఒక మనకు కోఆర్డినేషన్ రివ్యూ కమిటీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కస్టమ్స్ వారు, మనకు ఎయిర్పోర్ట్ వారు, ఎయిర్లైన్స్ వారు, అలాగే మనకు బ్యాంకర్స్, ఆర్టీసీ అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. సో అందరికీ హజ్ యాత్రికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలిగించకుండా మరి హజ్ యాత్రికులు బయలుదేరాలని చెప్పేసి వారి మరి ట్రావెల్ అంతా బాగుండాలని చెప్పేసి తీసుకోవడం జరిగింది. वाइस जगन की अवामी हुकूमत के क़याम के 4 साल मुकम्मल होने पर मुसलमानों के हर गोशे से मसरत का इजहार किया जा रहा है। अनंतपुर के मुसलमानों ने जगन हुकूमत को अक़लियत दोस्त हुकूमत करार दिया। अनंतपुर के मेयर मोहम्मद वसीम ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात रोशनास करा के जगन ने तरक्की की नई राहें हमवार की हैं। अनंतपुर वक्फ बोर्ड के ज़िला सदर नशीन के रिजवान ने कहा कि वायसार की तरह जगन ने मुसलमानों की तरक्की और फलाह के सिलसिले को अमली तौर पर आगे बढ़ा के मुसलमानों के दिल में ख़ास जगह बना ली है। वेलफेयर स्कीम्स और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आजकल हमारे सीएम साहब आंध्र प्रदेश में लेके जा रहे हैं, कई हमारे देश के हिस्ट्री में कई नहीं बोल के मैं आप सबसे बताता हूँ। और दूसरी ख़ास बात है कि आज माइनॉरिटीज़ को एक
ऊंचे पे बिठाए बोले तो देश में कोई भी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी साहब है। हमारे आंध्र प्रदेश में कई एमएलए सीटें और कई एमएलसी और एमएलसी काउंसिल चेयरमैन हमारे जकिया खान मापा को दिए और डिप्टी सीएम अमजद बादशाह को दिए, और हमारे अनंतपुर में भी खास तौर से हमारे एमएलए अनंत वेंकटराम रेड्डी साहब की तरफ से कॉरपोरेशन में 10 माइनॉरिटी सीट्स दिए और मुझे कम उम्र में मेयर बनाया, और सिर्फ वाई जगनमोहन रेड्डी के हाथ से ही मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी खास बात, अनंतपुर में उर्दू अकेडमी चेयरमैन दिए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन दिए, और कई तरह के मुसलमानों को कई दौर से आगे लेके जा रहे हैं। और दूसरी खास बात है कि खास करके मौजूद इमामों को उनका तनख्वाह बढ़ाए और मदरसों का ख्याल रख रहे, मस्जिदों का ख्याल रख रहे, और आने वाले दिनों में भी मुसलमान सारे भाई और मुसलमान ज़रूर वाई जगनमोहन रेड्डी साहब का साथ देंगे, और 2024 में 175 सीटों में तमाम आम वाई जगनमोहन रेड्डी साथ देंगे, मैं गुजार सकता हूँ। आज जो जगनमोहन रेड्डी साहब सीएम बनने के बाद में, जैसा राजशेखर रेड्डी साहब में हमारे को इसके आगे 4% रिजर्वेशन दिए थे और जो फीस रिइंबर्समेंट प्रोग्राम दिए थे, उससे हमारे भाई लोग, मुसलमान भाई लोग बहुत सारे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। तो उसके साथ साथ अभी जो जगनमोहन रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश आवाम के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन कंटिन्यू करते हुए, और उसके साथ साथ जो मेरे बहना शादियाँ नहीं हुए हैं उनको जो शादी तोहफा बोल के 50,000 जो गुज़श्ता तेलुगु देशम गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे स्टॉप कर दिए थे, तो वो पूरे क्लियर करते हुए आज हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब 1 लाख उसको बढ़ा के शादी तोहफा के इसमें दे रहे हैं। जगन हुकूमत ने अपने 4 साला मियाद में मुसलमानों से किए वादों को भी पूरा किया। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की फराहमी, डिप्टी सीएम का ओहदा, कौंसिल चेयरमैन के ओहदे पर मुस्लिम खातून एमएलसी का तकर्रुर, असेंबली और कौंसिल में मुस्लिम नुमाइंदगियों के अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, मुस्लिम तबके की माली मदद के अलावा मुख्तलिफ स्कीमात में मुसलमानों की तरक्की के बहबूद के काम किए गए हैं। मुसलमानों से किए वादों को पूरा करने पर वज़ीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया गया है। इस गवर्नमेंट में, जगन अन्ना के गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करे। हज यात्रा को जाने वाला को 14 करोड़ सैंक्शन करे, मदद करे। उर्दू एकेडमी के वास्ते, उर्दू यूनिवर्सिटी के वास्ते 50 पर 1 करोड़ सैंक्शन करे उर्दू एकेडमी के वास्ते। मदरसा वाला को 117 टीचर के वास्ते उन लगा को भी इजाज़त दिए टीचर्स को अपॉइंट करो बोल के। यहाँ है सो मुसलमाना में 90% मुसलमाना को पूरे संक्षेम पथकाल पूरे आते हैं। बहुत खुश हुए। अभी ये साल इस नहीं आते सो इलेक्शंस में भी फिर जगन अन्ना चाना बोल को मुसलमान पूरे हज यात्रा को गए सला पूरे दुआ करते हैं। हमारे सबकी तरफ से जगन अन्ना को शुभाकांक्षलु। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में 30 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 30 मुस्लिम कामयाब उम्मीदवारों में कश्मीर के वसीम भट्ट नुमाया रहे। वसीम भट्ट ने 7वां मुकाम हासिल किया है। वसीम अहमद कश्मीर के अनंतनाग इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। वसीम मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वसीम अहमद के वालिद महकमे ज़राअत में काम करते हैं और उनकी माँ घरेलू खातून है। वसीम अहमद की कामयाबी पर उनके घर में जश्न का माहौल है। वसीम अहमद ने बताया कि उनके वालिदैन की हौसला अफजाई के नतीजे में वो कामयाब हुए। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में तेलंगाना और आंध्रा के उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली विल्वाई विष्णुवर्धन रेड्डी ने 292वां रैंक हासिल किया है। विष्णुवर्धन रेड्डी की कामयाबी पर उनके वालिदैन पद्मा और नरसिम्हा रेड्डी ने खुशी का इजहार किया है। विष्णुवर्धन रेड्डी के वालिदैन का मानना है कि सख्त मेहनत के सबब ही उनके फर्जंद ने सिविल सर्विस में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने एक बार फिर इंसानियत का मुजाहिरा किया है। हाल ही में मछलीपट्टनम दौरे के दौरान जगन से एक किडनी मुतासरा शख्स नागा वेंकटा चंद्र बाबू ने मदद की दरख्वास्त की तो जगन ने फौरी कलेक्टर को हिदायत दी इस मुतासरा शख्स की मदद की जाए। जगन की हिदायत के चंद घंटों बाद ही नागा वेंकटा चंद्र बाबू को कलेक्टर राजा बाबू ने 2 लाख रुपए का इमदादी चेक हवाले कर दिया। मुतासरा शख्स ने जगन का दिल से शुक्रिया अदा किया।
हैदराबाद में चंद डेवलपर्स, रियल एस्टेट, फार्मा कंपनियों, IT अहदेदारों पर धावे जारी हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टरों के मकानात और दफातर में तनख्ही की जा रही है। इनकम टैक्स की अदायगी में बदअनवानियों के इल्जामात के पेश नज़र वक्त वाहिद में IT की 30 टीमों ने धावे किए हैं। बताया जाता है कि 100 गाड़ियों में IT अहदेदार पहुंचकर तनख्ही अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी में तजब्जुब की कैफियत की बीजेपी हाईकमान ने निशानदही की है। बीजेपी मरकजी क़यादत ने रियासती यूनिट को सोशल मीडिया के ट्रैप में न आने का मशवरा दिया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बंडी संजय तेलंगाना बीजेपी के सदर बरकरार रहेंगे। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीफ पार्टियों की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जून के महीने में तेलंगाना में अमित शाह और JP नड्डा के जलसे आम की मनसूबाबंदी की जा रही है। दिल्ली में पार्लियामेंट की 9 तामीरशुदा इमारत का इतवार 28 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के ताल्लुक से मीडिया को वाकिफ करवाया। अमित शाह ने बताया कि 9 तामीरशुदा पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्पीकर की सीट के पास सुनहरी रंग का सेंगहोल यानी इख्तियार की मुंतकिली से मुताल्लिक़ निशानी को नस्ब किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि सेंगोल हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त इख्तियार की मुंतकिली के वक्त बरतानवी हुक्मरानों ने अवलिन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के हवाले किया था। अमित शाह ने बताया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया। ताहम अपोजिशन ने सदर जमहूरिया से इफ्तिताह कराने की मांग करते हुए इस तकरीब के बॉयकाट करने का ऐलान किया है। 19 अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट की 9 तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कराने की मुखालिफत की और पार्लियामेंट बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के बॉयकाट करने का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया मॉर्मो से पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह कराने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इफ्तिताह कराने पर अपोजिशन जमातों ने एतराज़ किया है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब सावरकर के यौम पैदाइश के दिन करने पर भी एतराज़ जताया। जिन 19 अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब के बॉयकाट का ऐलान किया है, इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK, RJD, JDU, NCP, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, ठाकरे ग्रुप शामिल हैं। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से पार्लियामेंट की 9 तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह कराने का मशवरा दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इफ्तिताह कराने की मुखालिफत की। देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा और रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए। तो दिल बड़ा करिए ना, दिल बड़ा करने में क्या हो जाएगा? आप बाजू ठहरिए खैंची से, ओम बिरला साहब काट देंगे उसको, और क्या है उसमें बुरी बात क्या है? कभी कभी सेकेंडरी भी तो हो जाइए। हर चीज में आपके आगे रहेंगे तो कैसा होगा? ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। हाँ, आपकी पार्टी है, अलग बात है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर ये तो लोकसभा है, लेजिस्लेचर है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें भी आप सामने रहेंगे तो कैसा होगा बताइए? फिर संविधान पर आपने ओथ लिया है, आपने तो सजदा किया है पार्लियामेंट के सामने, आपने संविधान को चूमा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब एंटोनी अल्बेनीज़ के साथ बाहमी उमूर पर तबादिला ख्याल किया। तवन्नाई, तिजारत और दिफाई शोबों में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम देने का मोदी और अल्बेनीज़ ने अहद किया है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात की मज़म्मत की। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में दोनों मुल्कों के कौंसिल खाने खोलने से इत्तेफाक किया है। मोदी अल्बेनीज़ और सिडनी के गवर्नर ने सिडनी के साहिल पर कुछ वक्त गुजारा और तस्वीर कशी की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कुव्वूर में जगन ने विद्या दीवेना स्कीम के तहत तलबा के माओं के खातों में रकम की मुंतकिल। तकरीबन 10 लाख तलबा हो रहे हैं मुस्तफीद। हज कमेटी की क़यादत में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ मुनाकिद हुआ इजलास। हज उमूर में सहूलत बख्श इंतजामात में ताउन की दी हिदायत। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म से कराने की मुखालिफत। 19 अपोजिशन पार्टियों ने तकरीब का बॉयकाट करने का किया ऐलान। मोदी की सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुलाकात। ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में दोनों मुल्कों के कौंसिल खानों के क़याम से किया गया इत्तेफाक। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।